Right. So we started with compressibility factor, which suggests that Z is equal to V real by V ideal. यही हमने learn किया था. And we can write that as V real by V ideal can be written as nRT by P. है ना? तो ये P ऊपर आ जाएगा and this will be PV real by nRT. This is what we have learned the other day. And हमने ये भी learn किया बेटा कि इसमें से 3 cases आते हैं. First case is when V real is equal to V ideal. अगर ऐसा situation होता है तो gas will have Z is equal to 1. And we say real gas behaves like ideal gas. Real gas behaves like ideal gas. This is what we have learned as case 1. If you see case 2, we learned that V real could be greater than V ideal. इसका मतलब होता है कि Z यहाँ पर greater than 1 है और यहाँ पर repulsive forces dominant होते हैं. Repulsive forces dominant. Okay. Case 3 is a case where we had V real less than V ideal, where Z is less than 1, and we say there are attractive forces dominant. Attractive forces dominant. ठीक है बेटा, ये आई थिंक सबको रिवाइज हो गया. देखो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये केसेस आपको अच्छे से समझना है. ओके. देन वी ऑल्सो लर्न द फैक्ट कि अगर Z वर्सेस P का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस P, then one thing we can get it as Z is equal to 1. ये ग्राफ Z is equal to 1 है. And we learned that hydrogen and helium हमेशा ही positive direction में रहते हैं, H2 and helium. And then we saw that there are few gases like this, right? So few gases like this where this is nitrogen, oxygen, right? Methane और बहुत सारे gases ऐसे रहेंगे. We discussed about 3 different zones, if you recall. एक ये zone था और एक ये जोन था और एक ये वाला जोन था, राइट? ये जो जोन को हम लोग कहते थे, दिस जोन वी कॉल इट एज वेरी लो प्रेशर जोन, एंड दिस जोन इज मॉडरेट प्रेशर जोन, एंड दिस जोन इज हाई प्रेशर जोन. क्लियर? सो ग्राफ में ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि कहाँ पे क्या जोन होता है और ये जोन के बेस्ड Z का वैल्यू कैसे वेरी होता है. We learned 3 cases from here, students. One with very low pressure में जो real gas equation होता है P plus A n square by V square minus V into N minus V is equal to nRT. ये real gas equation होता है. And in the real gas, we can ignore both these factors. ये factor भी ignore कर सकते हैं. And we would get this as PV is equal to nRT. Right? Just, yeah. And Z would be equal to PV by nRT, which implies कि Z is equal to 1 है ये वाले केस में, है ना? ये कल पढ़ा था हमने. सब लोग को अगर याद नहीं है तो प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिएगा. हमने पूरे Z वर्सेस P को 3 जोन में डिवाइड किया था. फर्स्ट जोन इज अ वेरी लो प्रेशर जोन, सेकेंड जोन इज अ मॉडरेट प्रेशर, थर्ड जोन इज अ हाई प्रेशर जोन. सो ये फर्स्ट जोन था. इफ यू चेक आउट द सेकेंड जोन विच इज मॉडरेट प्रेशर जोन, where PA n square by V square into V minus NB is equal to nRT जो था, इसमें हमने बोला था कि यहाँ पे मॉडरेट प्रेशर पे वॉल्यूम फैक्टर इतना डोमिनेंट नहीं है, सो वॉल्यूम फैक्टर कैन स्टिल बी इग्नोर्ड, and we will get this as P plus A n square by V square into V is equal to nRT. When you multiply this, we'll get PV plus A n square by V, right, is equal to nRT. अब इसको nRT से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, so we will get this as PV by nRT plus AN by RTV is equal to 1. And we can clearly observe that PV by nRT Z होता है, so Z is equal to 1 minus AN by RTV.
क्योंकि ये सारे टर्म्स पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं, so we can say that this z value will be less than 1. It will always come as less than 1. So which you can clearly see it ना बेटा, कि देखो ये जो रीजन है, this is all moderate pressure, और इस रीजन में सारे के सारे गैसेस ऑलमोस्ट z less than 1 दिखा रहे हैं, except these two gases, हाइड्रोजन और हीलियम हम लोग अलग से पढ़ेंगे, but otherwise all the gases will show z less than 1 at moderate pressure, है ना। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना इसको, अगर आप डिराइव नहीं कर सकते हो तो फॉर्मूला याद करो, अगर डिराइव कर सकते हो तो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, देन यू कम टू दिस डेरिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द थर्ड पार्ट व्हाट वी स्टडीड वाज द हाई pressure case. So if you see the high pressure case में बेटा an square by v square into v minus nb is equal to nRT. In this case at high pressure students, this factor is less dominant, मतलब ये factor को हम लोग ignore कर सकते हैं. If you ignore this factor, what would happen? We'll get this as P into V minus NB is equal to nRT, and PV minus PNB is equal to nRT. Divide everything by nRT, so we will get PV by nRT minus PNB by nRT is equal to 1. So you can clearly see that this would be Z is equal to 1 minus PB by RT. यहाँ पे आप देख सकते हो n n कैंसिल हो रहा है, so that will be PB by nRT, और ये प्लस साइन होगा, right? And you could see PB by RT is a positive value, और 1 के साथ ऐड करोगे तो डेफिनेटली you will have Z greater than 1. So ये केस ऐसा है जहाँ पे Z is greater than 1, which means most of the gases you can see here कि ये सारे के सारे पॉजिटिव डिविएट कर रहे हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्रेशर. यहाँ से हाई प्रेशर जाओगे तो हमेशा मोस्ट ऑफ द गैसेस will have this characteristic. Okay, so these three things everyone, I think all of you have written the other day, so hopefully you understand that now. Now let us see specifically for hydrogen and helium, how does it vary. For hydrogen and helium gas, okay, for hydrogen and helium gas, what you may have observed in the graph is that if this is Z is equal to 1, Z is equal to 1 है, Z versus P है, so then हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए, दोनों के लिए ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव डिविएट कर रहा है, मतलब हमेशा पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा, राइट. विच इम्प्लाइज, यहाँ से ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि Z is always greater than 1 for hydrogen and helium at all pressures. At all pressures this is valid. Clear? Which implies, देखो Z greater than 1 होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपने अभी डिराइव किया है ना. Therefore for all pressures Z value will be equal to 1 plus PB by RT for hydrogen and helium. So I would suggest यहाँ से सब लोग लिखना स्टार्ट करो and show that for hydrogen and helium Z का वैल्यू कैसे वेरी होता है बेटा, ठीक है. So this is how the Z value changes for hydrogen and helium. Amazingly at all pressures इसका Z का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. Clear everybody? देखो अगर प्रेशर 0 हो जाएगा तो Z 1 होना, ये तो हो ही रहा है, Z is equal to 1 हो रहा है, और प्रेशर थोड़ा भी बढ़ा दो तो ये 1 के ऊपर ही जा रहा है ना, हमेशा ये 1 के ऊपर जा रहा है. So that's what you will be able to figure out. Okay. So make a note everyone. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? I can discuss again. Please tell me. No sir. Okay. Good. Now, going ahead, let us see. This is the last part of this topic. Okay, known as the critical parameters. Critical parameters. सब लोग हेडिंग दो बेटा, critical parameters. क्रिटिकल पैरामीटर्स ये कहता है कि गैस को क्या हम लोग कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ओके, सपोज पहले थोड़ा एक एग्जांपल्स बात करते हैं, फिर हम लोग थ्योरी में जाएंगे. ऐसे सोचो,
if at all I talk about any gas, suppose एयर की बात करते हैं, एयर को चाहे हम लोग कितना भी कंप्रेस कर ले इस रूम टेम्परेचर पे, अपना रूम टेम्परेचर कितना है करेंटली, अराउंड 25 डिग्रीज होगा। एट दिस रूम टेम्परेचर बेटा आप कितना भी गैस को कंप्रेस करो, कितना भी एयर को कंप्रेस करो, वो लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। सिमिलरली इफ यू टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड लिया आपने, और अगर आपने 30 डिग्रीज के नीचे, इफ यू गो बिलो 30 डिग्रीज और 30 डिग्रीज टेम्परेचर के नीचे जब उसको कंप्रेस करोगे ना, वो आराम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बट वही 32 या 31 डिग्रीज के ऊपर करोगे ना, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो चाहे आप कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई करो, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, दिस मीन्स देयर इज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस गैस, राइट। हर एक गैस एक टेम्परेचर के ऊपर अलग से बिहेव करता है, उस टेम्परेचर के नीचे अलग से बिहेव करता है, राइट। ऐसा टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर। सो अ टेम्परेचर above which we can say a temperature above which it is impossible to convert gas into liquid, but below which we can easily compress liquid and convert into easily compress gas and convert into liquid. The temperature like that, उस तरह के टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सब लोग हेडिंग दो बेटा, क्रिटिकल पैरामीटर्स। क्रिटिकल पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल टेम्परेचर, critical temperature. So what does this critical temperature imply? Critical temperature ये बताता है कि this is a temperature border जिसके ऊपर और नीचे गैस का बिहेवियर डिफरेंट है। So please write down with me a temperature above which gas cannot be liquefied. Gas cannot be liquefied only by applying pressure. Only by applying pressure. That's it. That is one important aspect. और हम लोग इसके मल्टीपल डेफिनेशंस लिख सकते हैं। A temperature below which a gas can be compressed to form liquid. Compressed to form liquid. ठीक है? Both these definitions are equally valid. Clear everybody? अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो अराउंड रूम टेम्परेचर के पास लिक्विफाई कर सकते हैं। सो वी विल टेक आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आइसोथर्म्स मतलब समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट। आइसोथर्म्स मींस ग्राफ्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ करते हो, those are called isotherms. ठीक है? So let us take this graph now. So I hope सबने definition लिखा है critical temperature का। Right? Let us see isotherms क्या होते हैं। If we take pressure versus volume, ठीक है? आइसोथर्म क्या कहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्म क्या कहता है कि एक ऐसा डोम बनेगा, राइट, जिसमें कि आप देखोगे कि गैसेस, वेरियस गैसेस हियर, एक टेम्परेचर ऐसा है, हर एक डिफरेंट टेम्परेचर पे देखो डिफरेंट तरीके से जा रहा है गैस, ऐसे टच करके फिर ये ऐसे जाता है इधर, बट यहां से ना ये ऐसे करके इधर जा रहा है ऐसे। These are all for carbon dioxide by the way, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। These are all at various temperatures बेटा, इसको हम लोग कहेंगे T1, T2, T3, T4, T5। ये जो टेम्परेचर है, this is TC, this is a temperature TC which we call it as critical temperature। ठीक है? अच्छा, अब सब लोग zones देख के समझना, what are the various zones we find, okay? अब ये जोन जरा देखना बेटा सब लोग,
दिस इज अ जोन, राइट, जहां पर गैस बिल्कुल आइडियल गैस जैसे नजर आ रहा है ना? कैसे? हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना, एक बार बॉयल्स लॉ फिर से याद करते हैं सब लोग। बॉयल्स लॉ हाँ वाज सर, व्हाट? वैसा लग रहा है। करेक्ट, हाँ। सो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हम लोग लेते हैं। बॉयल्स लॉ में हमने देखा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे वेरी होता है। ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे वेरी हो रहा है ना? तो इससे हमको क्या लर्निंग मिलता है बेटा, कि कोई भी गैस है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पे आप उसका प्रेशर और वॉल्यूम प्लॉट करोगे तो वो हमेशा आइडियल गैस की तरह ही नजर आएगा। So gases generally behave like ideal gas. All real gases behave like ideal gas at very high temperature. So higher temperature पे हमेशा ideal gas की तरह behave कर रहा है, ठीक है? अब ये पॉइंट के नीचे लेफ्ट साइड पे देखो बेटा, इधर इधर क्या हो रहा है? इधर देखो, आप चाहे कितना भी कंप्रेस करो, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा ना। देखो यहाँ पे इस प्रेशर पे भी वॉल्यूम उतना ही है, इस प्रेशर पे भी वॉल्यूम ऑलमोस्ट उतना ही है। सो वॉल्यूम हार्डली चेंज हो रहा है, या बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा है वॉल्यूम। ये कब हो सकता है? तब गैस पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ना। लिक्विड को तो हम लोग ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, विच मीन्स दिस एंटायर जोन इज ए लिक्विड जोन। ये जो पूरा जोन है ना बेटा, इधर से इधर तक, दिस एंटायर जोन इज ए लिक्विड जोन। ये पूरा का पूरा लिक्विड जोन, ठीक है? और ये तरफ, इस तरफ देखना बेटा, अ जोन हियर, ये वाला जोन देखना भी। दिस जोन इज सच अ जोन जहां पे हम लोग कहते हैं कि ये मोस्टली वेपर जैसा है। दिस इज ऑल वेपर। जब भी आप कोई भी गैस को लो टेम्परेचर पे रखोगे ना, उसका वेपर बिहेवियर ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू इट्स गैस बिहेवियर। ये वेपर जोन का मतलब क्या है? देखो, यहां से इमेजिन करो, अच्छे से देखो। ये एक लो टेम्परेचर पे, एक बहुत कम प्रेशर पे, ये कम प्रेशर है ना, ये बहुत लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर से मैंने कंप्रेस करना स्टार्ट किया, मतलब धीरे 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 प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा। एक पॉइंट पे आके सडनली प्रेशर चेंज, सडनली वॉल्यूम चेंज हो गया। अच्छा, इतना ज्यादा वॉल्यूम कब चेंज होगा? कब चेंज होगा पता है? ऐसे सोचो, इतने सारे गैस पार्टिकल्स है हमारे पास, अब उसको हम लोग धीरे 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 कंप्रेस करें, वो एकदम से एक ड्रॉपलेट बन जाए, है ना? अगर वो एकदम से एक ड्रॉपलेट बन गया तो मतलब वॉल्यूम ड्रास्टिकली चेंज हो गया बेटा, बहुत छोटा हो गया वॉल्यूम, है ना? which means this level of volume change is only possible when gas is suddenly converting into liquid. क्लियर? सो आप देख पा रहे हो सब लोग कि टेम्परेचर 5 T5 के पास मैं थोड़ा सा कंप्रेस किया गैस को और इमीडिएटली वॉल्यूम इतना चेंज हो गया, मतलब वो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? सो वी से दिस काइंड ऑफ अ जोन ना बेटा, दिस काइंड ऑफ अ जोन वेयर वी हैव वी आर एबल टू इजिली कंप्रेस द गैस एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसको कहते हैं हम लोग वेपर जोन। और ये जो जोन है, ये पूरा गैस जोन है, जहां पर हम लोग कितना भी चाहे टेम्परेचर अप्लाई करें, कितना भी चाहे प्रेशर अप्लाई करें। देखो ये ऐसे जा ही रहे ना, सी दिस ग्राफ हियर नो, T2 को चेक करना, ये ऐसे 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 ऐसे, आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, ऊपर जा रहे जा रहे जा रहे, बट कभी लिक्विड की तरफ टच नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई वी से आइडियल गैसेस आर इनकम्प्रेसिबल। आप कितना भी कंप्रेस करो, सॉरी, उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज दैट जोन जो लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये जो जोन है, दिस एंटायर जोन इज लिक्विड जोन ऑलरेडी। क्लियर एवरीबॉडी? सो देयर आर थ्री जोन्स, अच्छे से देखोगे तो देयर आर लिक्विड जोन, गैसियस जोन एंड वेपर जोन। अब आते हैं बारी इसका, ये कौन सा जोन है सर? ये जो बीच में ये वाला कौन सा जोन है? ये जोन है इक्विलिब्रियम वाला, जो लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। लेफ्ट साइड जाओगे तो लिक्विड, राइट साइड जाओगे तो वेपर, करेक्ट? सो दिस एंटायर जोन इज अ लिक्विड vapor zone. Okay, so this is a zone where we have liquid and vapor both in equilibrium. ठीक है? ये जोन में ज्यादा टाइम हम लोग रुक ही नहीं पाएंगे, या तो इमीडिएटली वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा या तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। प्रेशर कम करोगे तो एकदम से गैस बन जाएगा, प्रेशर बढ़ा दोगे तो एकदम से लिक्विड बन जाएगा, कोई भी गैस। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग वाटर को वाटर वेपर क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि वाटर वेपर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, बहुत हाई है, अराउंड 550 डिग्रीज है। अब 550 डिग्रीज के नीचे आप वाटर को जब भी कंप्रेस करो वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट 500 के ऊपर
यूजुअली वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, इसके लिए हम लोग उसको कहते हैं स्टीम. स्टीम इज अ gaseous form of vapor at a very high temperature. समझ में आया? I hope all of you understood this logic. Yeah. So there are 4 zones here. ग्राफ को अच्छे से समझो. फर्स्ट जोन है gaseous zone. The gaseous zone is that zone जहां पे हम लोग उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वेपर जोन जो बहुत इजीली हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये है लिक्विड जोन. ये कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड में. अभी इसको और प्रेशर अप्लाई करो तो कंप्रेस नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबल रहेगा. दैट्स व्हाई दिस इज ऑल लिक्विड जोन. और ये जो डोम है, ये डोम जो बना है वो होता है वेपर और लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. तो आप ध्यान से देखना, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर लाइन है, देखो, जो गैसियस, वेपर, लिक्विड तीनों को सेपरेट कर रहा है ना. यहाँ पे लिक्विड और गैस को सेपरेट कर रहा है, यहाँ पर गैस और वेपर को सेपरेट कर रहा है, isn't it? And even it is coming in equilibrium with liquid and vapor. Here everybody. So that's why this particular temperature is called critical temperature, which is like a borderline temperature. वो डिसाइड करेगा कि ये गैस बनेगा या लिक्विड बनेगा या वेपर बनेगा. Correct? That is why it is called as critical temperature. Now apply the definition, you will be able to understand it. Clear? सो सब लोग सिर्फ इतना सा ग्राफ नोट करो बेटा. सारे जोन्स ऐसे कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इतना समझो कि ये वाला गैसियस जोन है. अब सिर्फ ग्राफ लिखना और बताओ कि ये गैसियस जोन है, ये वाला लिक्विड जोन है और ये वाला वेपर जोन है, बस. सो जस्ट राइट डाउन दैट. अब देखो, अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर, बिफोर यू राइट डाउन दैट, विदाउट इट, yes Janvi, what is that? What if we take mixture of gases and increase the pressure and decrease the temperature? Will they be easily converted to liquid? Very good question. See, normally critical temperature is decided for a one particular gas. Okay? But if there is a mixture of gases like air है ना बेटा, air है, तो हम लोग उसका पहले एक average molecular mass find करेंगे. Janvi, first we will do an average molar mass. Average molar mass of air is 29 beta. It is not complete oxygen, it is not complete nitrogen, it is not complete carbon dioxide. उसका एवरेज मोलार मास आता है 29. अब वो मोलार मास के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी. एज ए मिक्सचर हम लोग देखेंगे उस पर क्या क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे. तो उस पर्टिकुलर गैस के लिए एक थियरिटिकल टेम्परेचर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय फॉर्मूलास. अभी फॉर्मूलास देता हूँ. वो फॉर्मूला से हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड करेंगे. क्लियर? तो उससे पता चलेगा कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए भी आप एक क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. नाउ लुक एट दिस पॉइंट हियर. इफ यू सी फ्रॉम हियर, ये जो पॉइंट है ना, जहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर टच कर रहा है, राइट हियर, दिस पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर जहां पे टच कर रहा है, वॉल्यूम पे जहां पे टच कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम. और जहां पे प्रेशर वाले ग्राफ पे टच कर रहा है यहाँ पर, सो वी कॉल दैट एज क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल प्रेशर पीसी. पीसी, ठीक है. सो ये देखो, ये पैरामीटर्स याद कर लेना, टीसी, पीसी एंड वीसी. ये 3 पैरामीटर्स होते हैं क्रिटिकल पैरामीटर्स. नाउ हमने टेम्परेचर का तो डेफिनेशन लिख दिया कि टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है. लेट अस राइट द डेफिनेशन फॉर क्रिटिकल प्रेशर ऑल्सो. साथ में लिखना सब लोग. राइट डाउन क्रिटिकल प्रेशर, एवरीबॉडी. क्रिटिकल प्रेशर. Pressure at which the critical temperature slightly varies from ideal behavior. Ideal behavior is called
is called critical pressure. Or the other way of looking at it is based on the critical volume. देखो critical volume क्या है? If I take 1 mole of a gas at critical temperature line, जो 1 mole जहां पे टच कर रहा होता है उसको कहते हैं हम लोग critical volume. So for 1 mole of a gas, the volume occupied on critical temperature curve, is critical volume. So ये हो गया बेटा critical volume, ये हो गया critical temperature, हमने pressure and critical temperature तो पहले से पढ़ा. Finish everybody? Right. So we understood what are critical temperature, pressure and volume. अब इसको formula based बनाते हैं बेटा. Formulae used to find PC, VC and TC. PC, VC and TC find करने के लिए क्या क्या formulas है? First, first VC से start करते हैं. VC was found out to be 3 times of B. Critical volume is found out to be 3 times of B. Derivation कोई नहीं पूछेगा जेई में, आपको सिर्फ ये समझना है कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है. So VC is 3 times of B. And what is PC? PC will be A by 27 B square. ये होता है PC. And DC will be equal to 8A by 27 RB. 8A by 27 RB. ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है. सो एक पॉइंट समझ में आ रहा है सबको कि अगर किसी भी गैस का हमको A और B वैल्यू पता है, if we just know what are their respective A and B values, we would be able to figure out what is its PC, TC and VC ना बेटा. It's that easy. So हमको क्रिटिकल पैरामीटर्स पता चल जाएंगे. और सपोज अगर आपको मैंने नाइट्रोजन गैस दिया, देखो अगर अभी आप पेट्रोल पंप्स जाओगे तो वहां पे नाइट्रोजन गैस भरते हो काफी सारे कार्स में. ओके, दैट इज अ रीसेंट ट्रेंड. इंस्टेड ऑफ जस्ट एयर, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इनर्ट है और जल्दी टायर से बाहर नहीं आता है, सो दे से बेटर है नाइट्रोजन भरना. ओके, सो नाइट्रोजन गैस यूजुअली भरने से पहले वो एक लिक्विड, उनके पास एक कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है. समझो यार, लिक्विड नाइट्रोजन कैसे बनाना होता है. टू मेक लिक्विड नाइट्रोजन पहले हम लोग उसके ए वैल्यूज लेते हैं. हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि नाइट्रोजन का ए वैल्यू कितना है, बी वैल्यू कितना है. ये हम लोग डेटाबेस से ले लेंगे. ओके, ये इंफॉर्मेशन हम लोग किसी ना किसी गाइड से ले लेंगे. फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना हो रहा है ना. 8 इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 27 आरबी के साथ, और हमको टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन्स में. तो केल्विन से हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे. फिर आप देखोगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर नाइट्रोजन का अराउंड -20 डिग्री है. मतलब अगर मुझे नाइट्रोजन को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे उस गैस को -20 के पास लेके जाना पड़ेगा और फिर कंप्रेस करना पड़ेगा. एंड दैट इज हाउ इट इज डन. ये जो हाइड्रोजन का भी लिक्विड मिलता है, हीलियम का भी लिक्विड मिलता है, ऑक्सीजन का मिलता है, मीथेन का मिलता है, बट ये सब जो जितने भी गैसेस हैं, दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स. ठीक है, सो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. सो वी नीड टू टेक द गैस, ब्रिंग इट टू द लोएस्ट ऑफ द टेम्परेचर, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लेके आना पड़ेगा, फिर कंप्रेस करना पड़ेगा.
सो नाइट्रोजन का लिक्विड गैस ऐसे ही बनता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आ रहा है ना कि कितने टेम्परेचर तक लेके जाना है, दैट यू विल लर्न इट फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज। सो व्हाट इज पीसी, वीसी एंड टीसी? Here everybody. Now knowing this formula, we can, in JEE this has been a very standard question, that find compressibility factor for real gases, compressibility factor for real gases using at critical parameters, real gases at critical parameters. What it is been asked is that if I take Z, then can we write it as PC VC by nRTC? ये होता है Z at critical, Z का वैल्यू एट क्रिटिकल पैरामीटर्स कितना होगा, ये यूजुअली क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे हमको पता है कि Vc तो डिफाइंड है 1 मोल के लिए, तो N हो गया 1 मोल, सो इट इज 1 मोल, सो PC VC by RTC, राइट, दैट इज फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल कैसे होगा वो चेक करना है। So we can say that ZC will be equal to PC का वैल्यू है 8/27 B square into VC which is 3B divided by RTC, R into TC कितना है 8A/27 RB, है ना। देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, R कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है, R and R will get cancel। देखो 27 और 27 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक बी और यहाँ पर एक बी कैंसिल हुआ, यहाँ पर बी और ये बी कैंसिल हो गया, ए और ए बी कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं एक्सेप्ट 3/8। आर यू ऑल एबल टू रिकॉग्नाइज दैट? एक्सेप्ट 3/8 सारे ही कैंसिल हो चुके हैं। So Z value will be equal to 3/8 and 3/8 is less than 1 ना बेटा, है ना, 3/8 तो less than 1 value होता है। So 3/8 which is less than 1, which implies real gases have more attractive forces dominant at critical parameters. So this type of questions could be asked. So what is critical parameters? What is compressibility factor? And what happens, you know, for the Z value there. चलो नोट करो ये सब लोग। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको सिर्फ फॉर्मूलास को थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, इधर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट और रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। Yes, Shraddha, here A and B are van der Waals constants from the van der Waals gas law equation. Finished all of you? No. I told you, like, you know, you should start solving questions, and this week's test, beta, it would be up to kinetic theory of gases, right? So that is up to question number 71. Okay? So that will be up to question number 71. So आपको 1 to 71 questions करने हैं. So
अगर किसी के पास बुकलेट नहीं है तो डोंट वरी, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और टर्म्स लिखूंगा, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। बट अदरवाइज इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप खुद से करोगे, ठीक है? आप खुद से करोगे और डाउट्स लेकर आओगे। यू कैन पोस्ट मी डाउट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट main exercise here, JEE main exercise. So first case is about ideal gases, right? Sir, this lesson is not there in the booklets which we have got. It is booklet 2 beta. Yesterday others might have got it. आपको नहीं मिला तो आप मैम से ले लेना। Okay, sir. Now see the second question. First question is relatively easy. I'm expecting first सबको करना चाहिए। Second question says, जिसके पास बुक नहीं है वो सुनेंगे पहले। It is given beta that 400 centimeter cube volume of oxygen is at temperature 27 degrees centigrade. Okay, so let me call this as T1 and this as V1. Okay, यहाँ तक information पढ़ते जाना फिर से। 400 centimeter cube of oxygen at 27 degrees is cooled to, यहाँ से cooling किया गया, so cooled to, okay, temperature which is -3 degrees centigrade. Yeah. And then what is the volume, final volume कितना होगा उस गैस का, बस ये बताया गया है। एंड विदाउट चेंज इन प्रेशर, ये बताया गया है कि P इज कांस्टेंट, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है? देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में ना जे के सारे क्वेश्चंस जो है जिससे रिलेट करेंगे, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, इमीडिएटली फाइंड करो कि इसमें कोई कांस्टेंट है क्या। और आपने देखा ना कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? प्रेशर। तो इमीडिएटली एक बार गैस लॉस को रिकॉल करो। बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, गेल-लुसाक्स लॉ कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो हम लोग अभी इसमें से कौन सा अप्लाई करना चाहिए एवरीवन? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, दैट्स इट। सो हमको चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है यहाँ पर। सो वी हैव टू अप्लाई चार्ल्स लॉ। सो अप्लाई चार्ल्स लॉ। So according to Charles' law, at constant pressure and fixed number of moles, V1 by T1 or V1 by V2 will be equal to T1 by T2. और हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है V2. So V2 is equal to T2 by T1 multiplied by T2 by T1 multiplied by V1. Okay. अब देखो टेम्परेचर T1 कितना हो गया? T1 is 27 डिग्री सेंटीग्रेड। So which is 27 plus 273, आपको पता है ना, हमने किया है क्लास में कि इसको हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है। So T2 भी गिवन है -3 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी हमको -3 प्लस 273 करना है, तो कितना हो रहा है यहाँ पर? 270 केल्विन, राइट? सो अभी आंसर क्या होना चाहिए? V2 इज इक्वल टू T2 is 270 डिवाइडेड बाय 300 इंटू V1। V1 कितना गिवन है? 400 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। तो अब यहाँ से देखो ये दोनों जीरो कैंसिल हो रहे हैं एंड 3 गोज 9 टाइम्स हियर और 9 3 जा 36, सो 360 सेंटीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। बस इतना सिंपल होएगा क्वेश्चन, सो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट, ठीक है? सो यू कैन सी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन देयर, सो डी। ये बेटा, I think all of you are able to do that, right? और इतना Yes, ही yes. टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस में, राइट? लेट अस डू ऑन ए सिमिलर क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, 6th क्वेश्चन। देखो ये नोट कर लेना सब लोग, सेकंड क्वेश्चन कैसे किया हमने। और जिसके पास बुकलेट है प्लीज 6th क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। Where is it? Contraction of the volume. Sorry. The final answer is not D, beta. The question is about contraction of volume. पूरा पढ़ लेना क्वेश्चन इसकी। Contraction of volume. Contraction of volume. What is the volume that got contracted?
So initially V1 was how much? 400. V2 is what we got it as 360. Contraction means कितना volume change हुआ है. So it is 400 minus 360. So the answer is 40 centimeter cube. So 40 centimeter cube, option is A. Okay. Check the question carefully. Right. Finish that, everybody. Sir, but the answer is given 360. Change that. The question is given, but a contraction in the volume will be. Okay. Yes, sir. Next. See the sixth one. If all of you are finished, see the sixth one. I will read out the question जिसके पास नहीं है. देखो, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज्ड, कितना प्रेशर बढ़ाना चाहिए इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम बाय 5%. 5% अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा तो कितना प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा. दैट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो क्वेश्चन में क्लियरली आइडिया है दैट इट इज हैपनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर. Constant temperature term is given and you can see volume decrease is by 5%. Volume decrease is by 5% and we need to figure out how much is the pressure increase in this case. Okay. So पहले ऐसे सोचो बेटा, initially volume है 100 ml. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस को जब परसेंटेजेस देते हो ना तो हमेशा एक 100 से स्टार्ट करना, इट विल बी इजियर. एंड वॉल्यूम 2 जो कि डिक्रीज हुआ है बाय 5%, राइट. 5% कम हो गया. अच्छा, 100 में से इसने क्या बोला है, द इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम बाय 5%, मतलब इसमें से 5% कम हो गया तो कितना हो जाएगा अभी 95 ml बन जाएगा, है ना. या सो डिक्रीज्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम बाय 5%, करेक्ट. सॉरी 5 अमाउंट नहीं, 5% माइनस. सो 5% का मतलब क्या है, देखो 100 में 5 अमाउंट कम हो जाना चाहिए, दैट इज 5% ना. तो अगर मैंने 100 में 5 अमाउंट कम किया तो कितना बचेगा, 95 बचेगा. नेक्स्ट, अब देखो P2 P1 P1 कितना रहेगा और P2 कितना रहेगा और उनमें परसेंटेज कितना चेंज होगा, ये फाइंड करना. All you know that it is at constant temperature. Constant temperature कौन सा लॉ यूज करेंगे बेटा, Boyle's law, isn't it? So P1 V1 should be equal to P2 V2, बराबर. So हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं that P2 will be equal to P1 into V1 by V2. देखो that will be equal to P1 into V1 कितना है, V1 is 100 divided by 95. Clear? This is divided by 95. ये है P2 का वैल्यू. और एट अ प्रेशर P1, अगर प्रेशर P1 है तो P2 का वैल्यू P1 into 100 by 95 आएगा. Okay. So now the question here is how much, what should be the pressure increase in order to do this. तो ऐसे सोचो, अगर 100 प्रेशर के लिए, सॉरी अगर P1 प्रेशर के लिए P2 का वैल्यू P1 into 100 by 95 है, राइट. सो P1 प्रेशर के लिए फाइनल P2 का वैल्यू इतना आ रहा है. तो अगर वो 100 होता तो कितना होना चाहिए, P2 कितना होना चाहिए. इफ P1 इज द प्रेशर देन P2 इज कमिंग दिस मच ना बेटा. अगर 100 P1 होता तो P2 कितना आना चाहिए, सिर्फ यूनिटरी मेथड, multiply these two and divide by this. So how much you will have, that will be 100 times of 100 divided by 95, correct, into P1. ठीक है. So ये P1 सॉरी into P1 इधर भी है. So ये P1 कैंसिल हो जाएगा. So 100 के लिए कितना अमाउंट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, देखो 100 के लिए हो रहा है 100 टाइम्स ऑफ 100 by 95, है ना, ये इंक्रीज हो रहा है. So P1 के लिए इतना प्रेशर है तो 100 के लिए कितना होगा. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट. एकदम सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ पहले. अब हमको प्रेशर डिफरेंस पता करना है ना. सो दिस इज P2 नाउ, ये P2 है. सो P2 माइनस P1 कितना डिफरेंस आया है,
ये चेक करना है। सो इट इज 100 into 100 by 95, ठीक है, माइनस 100, क्लियर। तो कितना हो रहा है 100 into 100 minus 95, करेक्ट। दैट ये क्योंकि कॉमन है, दैट डिवाइडेड बाय 95, क्लियर एवरीबॉडी। सो कितना आ रहा है अभी बेटा 100 into चेक करो 100 हमने कॉमन निकाला तो 100 माइनस 95 बाई 95 आया। सो 100 into 5 बाई 95 ये आया ना, ठीक है। सो if you calculate that, how much you are getting? See, you see the exact value here. So 100 divided by 95 into 5%. So how much we are getting? 5.26. So we have to increase it by 5.26%. This is the value. Please इसको नोट कीजिए, जिसको नहीं समझा वो मुझे पूछेंगे। Should I repeat this? This is basic percentage questions. Made a note, everybody? No, sir. Please write. Those who have finished can check 9th question. Yes, what I did, see, first I took 100 because percentage में दिया है, last third part. Now listen, P1 is making a pressure change to this P2. Now if P1 is 100, then how much should be P2? That is what I calculated. So I got this as 100 times of 100 by 95. Clear? Now we know what is P2, and initially P1 I took it as 100. So in that case, this is P2 minus P1. That will be P2 minus P1. So P2 minus P1 is coming out to be this much. That's what is being asked, right? Percentage means for 100 kitna change hoga, right? That's why I took P1 as 100. Okay. Done? Chalo, abhi dekho 9th question. So 9th question says 4.4 grams of gas at STP, 4.4 grams at STP occupies a volume of 2.24 liters. The gas can be what? Okay. So question is 4.4 grams of an unknown gas. It's an unknown gas. Okay. Or it is present at STP beta and it is occupying a volume of 2.24 liters. Clear? तो हमको अभी ऑप्शंस में से फाइंड करना है कि ये गैस कौन सा हो सकता है। देखो हमको एसटीपी कंडीशन पता है ना, एट एसटीपी वी नो दैट 1 mole occupies 22.4 liters, बराबर। 1 mole 22.4 liters ऑक्यूपाई कर, मैं उसको रिवर्स लिखता हूँ। 22.4 moles implies 1 mole of a gas, है ना, 1 mole of any gas। अच्छा ये हो गया, टू गिवन अमाउंट इज 2.4 liters। 2.24 liters will imply how many moles beta? So number of moles of the gas given is 2.24 divided by 22.4, so which is how much? 0.1 moles। हमको given है 0.1 mole, है ना। So we know the formula of number of moles already. Number of moles is weight by molar mass. So from here I can say molar mass is equal to weight by number of moles. Weight given is 4.4 divided by number of moles, which is 0.1. So कितना आ रहा है बेटा? 44 grams per mole. Correct? So that is 44 grams per mole.
44 किसका मोलर मास होता है? यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिए हैं? CO2 का CO, NO2 एंड CO2 ये दिया है, तो किसका ऑप्शन होना चाहिए? CO। सिंपल है ना क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जेईई में, तो उसको आना चाहिए सबको। नोट कर लो जल्दी। See the 10th question. Density of air is given. Vapor density of air will be how much? Okay. Density of air is given as 0.00130, and it is being asked, and this is at STP, right? STP. Okay. And we need to find out what is the vapor density. Vapor density of gas. ठीक है, देखो इसको हमने क्लास में डिराइव नहीं किया है, तो अभी यहाँ से लर्न करेंगे, सब लोग मेरे साथ लर्न करेंगे। लिसन, वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, है ना। इमेजिन करो ये V को मैंने राइट हैंड साइड लेकर, V को राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू N इंटू RT बाई V हो जाएगा। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ द गैस बाई मोलार मास ऑफ द गैस इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, बराबर। अब इसको थोड़ा ध्यान से चेक करना, दिस वेट बाई वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा हमेशा, डेंसिटी ना। सो दिस विल बिकम डेंसिटी ऑफ ए गैस इंटू आर टी डिवाइडेड बाई एम। सो आई कैन राइट PM is equal to DRT. This is another way of expressing ideal gas equation. जो कॉमनली हम लोग देखते हैं कि ये है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV is equal to nRT. You can also write that PV is equal to nRT in terms of PM is equal to DRT. ये पॉइंट सबको क्लियर है अभी? So you can write that as PM is equal to DRT. Okay. Any doubt there? ना, चलो, तो अभी हम लोग को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन पता है ना बेटा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 273 केल्विन्स एंड प्रेशर इज एट 1 atm, प्रेशर होता है 1 atm, करेक्ट। यहां से हम लोग मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हैं, M इज इक्वल टू DRT बाई P। डेंसिटी तो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 0.00130 इंटू आर का वैल्यू हमको पता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज 273, दैट होल डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर इज 1 atm, दैट्स इट। सो हमको सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है। सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 0.0013, right, that multiplied by 273, so that is coming out to be 29.1। अच्छा, ये जो गिवन है दिस इज गिवन एज ग्राम पर ml, डेंसिटी ग्राम पर ml है, बट यहाँ पर हम लोग जो वॉल्यूम लेते हैं वो लीटर में होता है ना, इसके लिए हम लोग को 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट इट एज 29.1, ओके, ग्राम्स पर मोल। ये आ गया हमको मोलार मास ऑफ एयर। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि एवरेज मोलार मास ऑफ एयर इज अराउंड 29, है ना। ये यहाँ पे हमने डिराइव भी किया, अभी मैथमेटिकली वैल्यू भी कैलकुलेट किया, क्लियर। नेक्स्ट, सो फर्स्ट थिंग इज दिस, सेकंड थिंग is a new definition called as vapor density beta. So you might be wondering, sir, ये vapor density होता क्या है? VD, vapor density is nothing but it is defined as the relative molar mass of a gas with respect to molar mass of hydrogen.
सो किसी भी मोलार मास को हाइड्रोजन के मोलार मास से डिवाइड करोगे तो उसको कहते हैं वेपर डेंसिटी. सो वी कैन सी दैट वेपर डेंसिटी, क्योंकि मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन फिक्स्ड है, इट इज 2 ग्राम पर ml, और मोलर ऑफ मास ऑफ गैस अभी जस्ट हमने फाइंड किया है 29.1 by 2, करेक्ट. सो अभी वेपर डेंसिटी कितना होना चाहिए, 29 by 2 डिवाइडेड बाय 29.1 डिवाइडेड बाय 2. सो कितना आ रहा है बेटा, 1 4.5 and 5, 14.55, राइट, इज द वैल्यू विच यू आर गेटिंग. आई थिंक वो वैल्यू है डी, बराबर. चेक करो ऑप्शन डी. प्लीज मेक ए नोट, ये पूरा डेरिवेशन के साथ नोट करना पड़ेगा सबको, दिस इज इंपॉर्टेंट. Finished, everybody? No, sir. Just give me a sign once you have finished it, okay? Those who have finished, let us see 13th question. So just 1 second, show the second question. Second one, beta. Okay. Yes, sir. What happened? You're facing any issue there? Yes, sir. Done? Okay. 10th one हो गया. Yes, sir. चलो अभी बढ़ते हैं बेटा आगे थोड़ा 13th क्वेश्चन की तरफ. 13th और 16th थोड़ा सिमिलर है, तो पहले मैं 13th 16th करूंगा, फिर 15th पे आऊंगा. ओके. 13 देखो, चार्ल्स लॉ क्या होता है, पहले चार्ल्स लॉ हम लोग को जो पता है वो लिख लेंगे. Charles law suggests that कि V is directly proportional to T और V is equal to some constant into T. अच्छा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? In case if you differentiate volume on both the sides, so we'll get this is dV by dt is equal to K, and we know that this happens at constant pressure. Right? Differential of T क्या होता है बेटा? 1 होता है ना. कोई भी dx by dx क्या होता है? d of x by dx कितना होता है? 1 ना. तो यहाँ पर भी हमने दोनों तरफ d by dt डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा और dv by dt आ जाएगा k ना, ये आ जाएगा वैल्यू. एंड दिस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे बार लिख के p, इसका मतलब होता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे. बार लिख सकते हो या ब्रैकेट लिख सकते हो, बोथ ऑफ देम आर सेम. सो dv by dt
एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू के। तो आंसर क्या हो गया बेटा? ए। ठीक है। सिमिलरली 16th वन, लुक एट इट। 16th में हमको पता है कि P इज इक्वल टू बॉयल्स लॉ के बारे में पूछा है। 16th वन इज अबाउट बॉयल्स लॉ। बाय डेफिनेशन बॉयल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1/v। अच्छा, दोनों तरफ अभी डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम करेंगे तो dp/dv at constant temperature will be equal to k into d/dv of 1/v। अच्छा, 1/v का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा? अच्छा, x रेज टू पावर ऑफ n का डिफरेंशियल क्या होता है एवरीवन? सो d/dx of x raised to power of n is equal to how much? n into x raised to power of n minus 1 होता है ना? यही चीज हमको यहाँ पर भी करना है। सो k into d/dv of v raised to power of -1। v raised to power of -1 का कितना हो जाएगा? -1 into v raised to power of -1 and -1। So that is coming out to be v minus k into v raised to power of -2। So we can get this as dp/dv at constant temperature is equal to minus k by v square। Yeah, right? So that will be coming as minus k by v square। Right. So now you can see that minus k by v square kidhar hai? So that is option B। Yeah, everybody make a note। ये दोनों नोट कर लो जल्दी। बहुत ही सिंपल से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सारे। आप देखोगे जेईई में प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे, और सीईटी में काफी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको ये बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा सीईटी के लिए भी। तो नोट कर लेना सब लोग। किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे बेटा। Right, so those who are finished can start working out with 15th question। Read the 15th question first। जिसने कंप्लीट किया है प्लीज रीड करो 15th क्वेश्चन। Just a minute। So let us see the 16th question student। 15th question। देखो बेटा क्या दिया ना, डेंसिटी ऑफ टू गैसेस ऑफ इक्वल मोलर मास आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो टू गैसेस दिया, लेट अस से उसका एक गैस को ए कहेंगे, एक गैस को बी कहेंगे। इन दोनों का मोलर रेशियो दिया, इन दोनों का रेशियो दिया है 1/2। ठीक है। और एक हिंट क्या दिया बेटा कि मोलर मास है ना दोनों का सेम है, Ma इज इक्वल टू Mb। और उसके बाद दिया है टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेशियो है Ta/Tb is given as 2/1। टेम्परेचर इज 2:1। और बोला है कि व्हाट इज द प्रेशर रेशियो। सो हमको कैलकुलेट करना है Pa/Pb कितना होगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करना है। अभी हमने लर्न किया ना Pm इज इक्वल टू DRT इज ऑल्सो ए आइडियल गैस इक्वेशन। सिर्फ वॉल्यूम के यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में लिख रहे हैं, पहले हम लोग वॉल्यूम के टर्म में लिखते थे। ठीक है। सो Pm इज इक्वल टू DRT। तो यहाँ पे हमको पता है कि R इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Pm/dt इज ए कांस्टेंट वैल्यू R। अब आई कैन राइट दैट एज Pa
प्रेशर अगर ए गैस लिया हमने तो PA into MA divided by DA into TA, that should be equal to PB into MB divided by DB into TB, है ना? तो another case what we learned is कि MA और MB दोनों सेम है, तो उसको भी मैंने कैंसिल कर दिया. So we have this as PA by PB is equal to DA by DB into TA by TB, बराबर. क्योंकि डेंसिटी को उधर लेकर चला गया तो मुझे DA by DB मिला और TA by TB मिला. So DA by DB already value given है 1/2, TA by TB already given है 2/1. So ratio कितना आ रहा है बेटा? 1:1. That's it. That is a simple question. So I hope all of you got that. Very good, Shraddha. Now come to 21st question. जिसने कंप्लीट किया है 21st क्वेश्चन रीड करेंगे. So I hope all of you figured out 15th question. ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन में 3 बल्ब गिवन है. Three bulbs are given and these bulbs are connected with each other. These bulbs are connected with each other. एक बल्ब में है 1 लीटर N2, 1 लीटर N2, 635 mm प्रेशर, 1 लीटर N2 और 635 mm प्रेशर. यहाँ पर 1 लीटर नियॉन और 212 mm प्रेशर, और यहाँ पर है 0.5 लीटर्स और ऑफ हाइड्रोजन और प्रेशर है 418 mm. So this is what is given, students. Right? Now we know this is the given condition. We need to figure out what is the pressure of the system when all the stop clocks are opened. मतलब सबको ओपन कर दिया और दोनों सब गैसेस आपस में पास हो रहे हैं, तीनों बल्ब में पास हो रहे हैं, तो प्रेशर कितना रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ठीक है. राइट. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी नो. या टोटल प्रेशर आपको याद हो तो टोटल प्रेशर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू, because now it has opened, I can say the total number of moles into RT divided by total amount of volume, है ना? यही होता है. सो फाइनल प्रेशर होता है, क्योंकि तीनों में मिक्स हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पहले फिगर आउट करेंगे, मल्टीप्लाई दैट विथ R into T डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ये टोटल वॉल्यूम. ठीक है. तो पहले हम लोग टोटल वॉल्यूम लिख लेते हैं बेटा. टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर? 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 0.5 लीटर, है ना? सो ये हो जाएगा 2.5 लीटर्स. आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं. अभी हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, फर्स्ट लेट अस टेक दिस एज कंटेनर 1, कंटेनर 2 एंड कंटेनर 3. सो कंटेनर 1 में कितने मोल्स है, प्लस कंटेनर 2 में कितने मोल्स है और कंटेनर 3 में कितने मोल्स है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है बट उसका प्रेशर और प्रेशर और वॉल्यूम दे दिया. तो we know that PV is equal to nRT. So हम लोग को लिख सकते हैं number of moles as PV by RT ना, हम लोग ये लिख सकते हैं ना PV by RT. So I can write number of moles as P1V1 by RT, और N2 लिख सकते हैं हम लोग P2V2 by RT plus N3 we can write it as P3V3 by RT. ये हम लोग को number of moles आ गए. So let me substitute this back in the equation here. So P total is equal to P1V1 by RT plus P2V2 by RT plus P3V3 by RT. ठीक है. That whole multiplied by RT. ठीक है. That whole divided by total volume. देखो RT हर जगह पे कॉमन आ रहा है, ये पूरा RT कॉमन आ जाएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. So we get total pressure is equal to P1V1 plus P2V2 plus P3V3, that whole divided by
टोटल वॉल्यूम, दैट्स इट। अब देखो P1 V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, P1 है 635 इंटू 1 वॉल्यूम, P2 है 212 इंटू 1 प्लस 418 इंटू 0.5, ये है। सो 635 प्लस 212 कितना हो जाएगा देखो, दैट इज 847 plus we need to take half of this, that is 209. This is how much it is, 418 का half कितना हो जाएगा, 209. So अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1056, बराबर। So we'll get this as 1056. Here 1056 mm आए ना हमको, 1056 mm. So I think all of you got so far. Right. So we got the pressure in mm. अच्छा, pressure in ATM कितना होगा? We know that 760 mm is equivalent to 1 ATM. उसको ATM में कैसे convert करना है? 1056 divided by 760 ATM. ये आ जाएगा 1056 by 760 ATM. So the value which you are getting here will be 1056 divided by 760. So 1.38 ATM. This is the value which you. Which of the following? एक बार चेक करो सर मतलब आंसर डी आएगा ना, 1.5 आता है एटीएम। हाँ बेटा, approximately 1.5 है। ओके सर। डी। चलो इसको नोट करो सब लोग। सर व्हाट अबाउट द 17th 18th and 19th क्वेश्चन? You have to do it ना बेटा, similar questions are. Okay? You guys need to try ना, सब मैं थोड़ी करूंगा अभी। मैंने जो लग रहा है, जो डिफरेंट क्वेश्चन है, जो नए हैं, वो मैं करूंगा आपको। ओके, आइडिया दूंगा आपको कैसे करना है। देखो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 20th पूरा डेंसिटी रिलेटेड है, जो हमने 15th का किया था, बिल्कुल सेम है। 19th is similar to what you would have it in question number 2, similar to that. 17th और 18th तो सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड है, so that you don't have to worry. ओके सर। Shraddha, we can add, according to Dalton's law, we can add P1 plus P2 plus P3 only if the volume is constant बेटा। Same volume में अगर आपको already pressures given है तो we can add them, there is no issue, ठीक है। बट यहाँ पे सारों का वॉल्यूम अलग अलग है ना, तो तीनों को मिलाने के बाद पूरा वॉल्यूम बनेगा, then you have to add it. Okay, finish everyone? नो सर। चलो जल्दी करो, जिसने कंप्लीट किया दे विल चेक क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि 25 हमने सिमिलरली क्लास में किया था और मैंने आपको बताया भी था कि ओपन वेसल केसेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सर प्लीज लिटिल जूम आउट द स्क्रीन।
फिनिश्ड? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ऐसा 25th। देखो ओपन वेसल केसेस फिर से आपको एक बार साथ में करना है। 25th और we didn't divide it by V2 here बेटा, सॉरी आई डिडंट चेक इट आउट। हाँ हो सकता है हमने VT के साथ डिवाइड नहीं किया यहाँ पे, इसके लिए थोड़ा स्लाइटली चेंज आ रहा है आंसर। So I forgot to divide it by VT here. So we got this as total pressure and we need to divide that by VT is 2.5 now. Everybody, nobody has noticed that. Check. 2.5 multi divide नहीं किया इधर। So मैंने इसलिए तो ऑप्शन पूछा था 1.56 क्यों आता है 1.5। अच्छा देखो 1.38 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है अभी चेक करो प्रेशर कितना है। 1.38 divided by 2.5, so 0.55, yeah 0.56 ऑप्शन ए आ रहा है बेटा। चेंज दैट ऑप्शन। Yes, now let us see 25th. 25th you got D beta. Let us see the question now. An open vessel is heated until 1/5 of the air in it has been expelled, मतलब escaped. Assume the volume of the vessel remains constant, the temperature at which the vessel has been heated to. ये मैंने बताया था आपको कि इनिशियली टेम्परेचर T1 है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड हमको N1 नहीं पता, राइट N1 कितना है नहीं पता, एंड T2 हमको पता करना है हाउ मच इट इज, एंड N2 हमको नहीं पता, बट हमको ये पता है कि N1 T1 शुड बी इक्वल टू N2 T2। ये हमने कल लर्न किया है ओपन वेसल केसेस। सो T2 विल बी इक्वल टू N1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई N2, है ना। तो हमको आ जाएगा N1 बाई N2। अच्छा T1 कितना है 127, 127 को प्लस 273 मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो तो आ जाएगा 400। सो दिस मच इज द टेम्परेचर। अब देखो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स दैट हैज एस्केप्ड इज 1/5। 1/5 फ्रैक्शन एस्केप हो चुका है, मतलब अगर आपके पास N1 था तो N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई N1, ये हो गया फ्रैक्शन ना बेटा, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। क्लियर? सो ये फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है 1/5। ओके हियर एवरीबॉडी, सो दिस मच इज अ फ्रैक्शन। सो अभी हमको ये पता है कि N1 बाई N2 यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। N1 बाई N2 कितना आएगा, बस उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू लेकर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आपको आंसर चेक कर लेना चाहिए, बस इतना है। ठीक है, so we got that 1/5 of the air has been expelled, so इतना 1/5 of the air has been expelled, so you can see ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो पता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, so it does not matter. See imagine like this, easy way out मैं बता दूं, 1/5 है ना, तो यहाँ पे ऐसे ले लो 5 minus 1 sorry 5 minus 4 divided by 5 is equal to 1/5 ही तो होता है। तो आप क्या दोनों को कंपेयर कर सकते हो ना, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, N1 का वैल्यू है 5, N2 का वैल्यू है 4, तो बस यही वैल्यू आप यूज कर दो। सो 5 into 400 divided by 4, so how much we are getting here now, 500 kelvins। Here everybody, हमको मिल गया 500 kelvins। so if this is 500 kelvins, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा, -273। so -273 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, so we will get this as 227 degree centigrade। That's it, correct beta, make a note। अगेन देयर इज एन ओपन वेसल क्वेश्चन 28th वाला, आपको फिर से करना पड़ेगा ओपन वेसल का। ओके
Finished. Now let us come to 32 question. जल्दी नोट करो और 32 क्वेश्चन पे आ जाओ. Any doubt from 25th question, students? Okay, now listen to 32. Say mass of CH4 and H2 is taken in the container. The partial pressure caused by H2 is how much of the total pressure? So partial pressure कितना है of the total pressure? So we have mass of CH4 and mass of N2 being same. Sorry, N2 नहीं, H2 है ना यहाँ पे, H2. ये दोनों same given है. And we need to figure out what is the partial pressure of H2 with respect to partial total pressure. ये हमको calculate करना. This is the question asked better, right? So how we can do that? See, partial pressure of H2 will be equal to mole fraction of H2 multiplied by total pressure. यही learn किया हमने Dalton's law से. From Dalton's law, we learned that partial pressure can be related with respect to total pressure like this. Mole fraction of H2 कैसे आएगा? That will be number of moles of H2 divided by number of moles of H2 plus number of moles of CH4. अच्छा, how do we get number of moles of H2 now? That is weight of H2 divided by molar mass of H2. So weight of H2, let us assume it as X. So X by 2. Similarly, number of moles of CH4 कितना हो जाएगा? That is weight of CH4 divided by molecular mass of CH4. So यहाँ पर भी हम लोग X divided by molar mass is 16. CH4 का molar mass 16 होता है. So it is X by 2 divided by X by 2 plus X by 16. अब देखो X X हो रहा है कैंसिल. So ऊपर आ जाएगा 1 by 2 divided by, नीचे आ रहा है 1 by 2 plus 1 by 16. Right? पहले नीचे वाला LCM ले लो बेटा. 1 by 2 divided by, this will go 8 times. So 8 plus 1 9. So 9 by 16. Sorry, 9 by 16 आ जाएगा इधर. We'll get this as 9 by 16. हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है. 1 into 16, 2 into 8. So we will get this as 16 divided by 2 times of 9. So which is 8 by 9. So therefore mole fraction is 8 by 9. So pressure of H2 divided by total pressure is equal to mole fraction of H2, which is equal to 8 by 9. So बस यही क्वेश्चन पूछा है. So answer A. Make a note everybody. So I hope all of you understood these questions now. We will we'll have one more session where we'll have complete problems discussion, correct? But meanwhile, this week's exam students will be up to question number 71, kinetic theory of gases तक. ठीक है? So इतना आप complete करो, जो भी doubts है लेके आओ, okay? So rest of the questions, जिसमें से जो भी अच्छे questions है वो सारे मैं discuss करूँगा आप लोगों के साथ. Okay? चलो, I'll end the session now. Anyone has any doubts? No, sir. Okay, guys. Chalo, bye. Thank you, sir. Okay, beta, bye. Thank you, sir. Beta, Thank you, sir. Bye, sir. bye, beta. Bye, sir. Bye, beta. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, beta. Thank you, sir. Bye, beta.